Now we will calculate how much energy is stored in a charged capacitor. What can we measure in a charged capacitor? Answer, we can measure its capacitance. How? Epsilon naught A upon D, area and distance we can measure. So we can measure C. C is a measurable quantity. Then the potential difference is also a measurable quantity. The charge we give is not a measurable quantity. So we must have an expression of energy which shows C and V in that expression. Okay, first what should be the method? Here is a capacitor, this is the conducting plate and this is the inducing plate. Okay. Now, initially there is no charge on it. If there is no charge on it, there is no potential, the potential is zero. We give it a small charge and its potential goes on increasing. इस चीज को हम दो तरह से लिख सकते हैं. Okay, how much work we have to do if we increase potential a little? So we give a charge Q so that potential increase by dV. ओके, बहुत छोटा सा पोटेंशियल इंक्रीज किया हमने dV और हमने Q चार्ज दिया, तो कितना वर्क हमने किया होगा इस पे? तो वर्क डन dW is equal to, we know it is charge multiplied by potential, so Q multiplied by dV. ओके, ये थोड़ा सा पोटेंशियल dV राइज हो गया. अब अगर हम इसका पोटेंशियल और राइज करना चाहते हैं और चार्ज देंगे, लेकिन उस समय वर्क डन की वैल्यू बदल जाएगी. क्यों? क्योंकि सामने पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है. शुरू में पोटेंशियल 0 था तो हमको बहुत कम वर्क करना पड़ा. फिर पोटेंशियल 1 वोल्ट हुआ तो Q इंटू 1 वोल्ट हुआ. फिर पोटेंशियल 3 वोल्ट हो गया तो Q इंटू 3 वोल्ट वर्क हुआ. फिर पोटेंशियल 50 वोल्ट हो गया. अब हम एक Q को भेजते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है हमको? Q into 50. So every time the work keeps on changing, therefore we have to go for calculus method. For a very small increase in potential dV, the work done, a small work done is Q into dV. And now if we want to find out the total work when the potential has increased from 0 to V volt, then how much will be the total work done? Answer, total work done will be Q into dV integration from 0 to V. Okay, now we do this integration. Q is a variable quantity, a function of potential with reference to capacitor. Q is equal to C into V, so it is a function of voltage. We write it this way, CV dV. Now it is C is a constant, it comes out. V dV has the integration of V square upon 2. Okay, so if we put V here, then this will become half CV square. So this is the work done in taking the potential from 0 to V volt. So the work done converts into its potential energy. This is electrical potential energy in a capacitor. So electrical potential energy in a capacitor is half CV square. Okay, now this half CV square, we can have other terms also in terms of Q. C is equal to Q upon V. In that case, this will become half QV. Also, we can eliminate V also. V is equal to Q upon C. So this will be half Q square upon C. So these are the three terms for energy. Now students normally ask which one we should write. Answer, we should write this half CV square. But
it is not necessary that you always keep on using it. In this, C is a constant. Why C is a constant? If we are not changing the capacitor, we are changing only voltage on it, then C is a constant and V keeps on changing. So this is there. Now, if there is a capacitor, we have given it a charge and then we have disconnected the battery. No more charge can enter, no more charge can leave. Q is a constant. Now, if Q is a constant and we are changing its voltage, then this is the energy. Okay. Similarly, Q and C makes this, so you will find it. If we change Q, C is constant. This is the formula you can use. Whatever datas are given to you, according to, you can use the formula for this. This is energy in a parallel plate capacitor. Now, if we have a combination of capacitors, what should be the energy? Right. So we will see capacitors in series and in parallel. What happens to energy? When we consider as to what happens to energy, then one very basic rule comes to our mind, and that rule is the law of conservation of energy, which is always applicable, which is a fundamental law. What does it say? Energy is conserved. That means if three capacitors or many capacitors have certain energy, U1, U2, U3, and we combine them, the total energy should be how much? Answer, it should be U1 plus U2 plus U3. Why? Law of conservation. It is so simple. But then sometimes we have a doubt. अगर हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो एनर्जी ऐड होगी, और अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो भी एनर्जी ऐड होगी. Is it the truth? Answer is yes. So sometimes we are asked, prove that whether we connect capacitors in series or we connect capacitors in parallel, the combination of energy always remains same, and that we are going to prove now. So, energy in combination. First we take series combination. In series, every capacitor has got charge Q. And what will be the energy for this? So answer, energy is equal to half Q square upon C1. यहाँ पर हमको वोल्टेज नहीं पता है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लेते हैं? Q और C का. सो Q स्क्वायर अपॉन C1. दूसरे की एनर्जी कितनी है? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2, और तीसरे की एनर्जी हाफ Q स्क्वायर अपॉन C3. तो टोटल एनर्जी कॉमन क्या निकला? हाफ Q स्क्वायर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. अब देखिए 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 क्या होता है? C इक्विवेलेंट, और इसके पास भी चार्ज कितना है? Q. सो दिस इज हाफ Q स्क्वायर इंटू 1 अपॉन CE. सो दिस इज 1 अपॉन CE. दिस हाफ Q स्क्वायर अपॉन CE, और हाफ Q स्क्वायर अपॉन CE क्या है? एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ये Q इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर Q है. तीनों के कॉम्बिनेशन अगर सीरीज में है तो इस पर भी चार्ज सेम होगा Q, और कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस इतना होगा. तो ये इसका, ये जो एनर्जी है, ये ही किसकी एनर्जी है? कॉम्बिनेशन की. सो दिस इज एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन. ये क्या है? एनर्जी इंडिविजुअल्स. तो जब हम तीनों इंडिविजुअल की एनर्जी जोड़ते हैं तो हमको किसका एक्सप्रेशन मिलता है? एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C.
ओके, सो अब पैरेलल में देखिए, तीन कैपेसिटर हैं, इनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। ये तीनों को पैरेलल में जोड़ना है। लेट मी मेक देम अगेन, दिस दिस एंड दिस। C1, C2, C3, हमने इनको जिस पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से जोड़ा है उसके कारण यहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो तीनों में क्या चीज कॉमन होगी? V, V, V। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल्स? एनर्जी इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। दिस इज, इसके पास एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। यहां पर हमको C और V दिए गए हैं, Q नहीं दिया गया, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। ओके, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ओके, दिस इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर कॉमन, और यहां क्या बचा? C1 प्लस C2 प्लस C3। अब पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 किसका कैपेसिटेंस होता है? आंसर है ये इन तीनों का मिलाकर इन दोनों के बीच जो कैपेसिटेंस आएगा इस पूरे सिस्टम का, व्हाट वी कॉल इट CE, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और उसमें वोल्टेज कितनी लगी हुई है? V। ओके, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? आंसर है इसकी एनर्जी होगी हाफ C V स्क्वायर। तो यहां पर देखिए हाफ, ये तीनों मिलाकर क्या बन गए? C इक्विवेलेंट, सो हाफ दिस इज C इक्विवेलेंट एंड V स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर। और हाफ C V स्क्वायर किसकी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो दिस इज एनर्जी ऑफ combination. So energy in individual capacitors is equal to energy of the combination. सीरीज में हमने देखा था एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर इज द सीरीज एनर्जी इन कॉम्बिनेशन। अब अगर इनिशियली हमारे पास ये तीन कैपेसिटर हैं विदाउट एनी कनेक्शन, C1, C2, C3 इसका कैपेसिटेंस है, हर एक को हमने कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है V, और हर एक में के पास कुछ चार्ज है Q। अब हम इसको सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े, किस केस में हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी? आंसर है नो डिफरेंस। आप सीरीज में जोड़िए उतनी ही एनर्जी मिलेगी, और पैरेलल में जोड़िए उतनी ही एनर्जी मिलेगी। और इसके लिए बेसिक प्रूफ क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी लॉस होती नहीं, हमको पूरी मिलेगी। दूसरा, ऐसा तो नहीं कि कुछ एनर्जी बच जाएगी और हमको नहीं मिलेगी, तो हमने ये दोनों प्रूफ करके देख लिए कि जितनी एनर्जी कॉम्बिनेशन के पहले होती है पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन में होती है, जितनी एनर्जी पहले होती है पूरी इसमें होती है। फिर किस चीज का डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल जोड़ने में? आंसर है जब हम सीरीज में उसको कंबाइन करेंगे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, टेंशन ज्यादा मिलेगा, फोर्स ज्यादा मिलेगा। अब हमारे पास एक स्टार्टर है, कार का सेल्फ, मोटरसाइकिल का सेल्फ, उसको घुमाना ताकत चाहिए, उसके लिए फोर्स चाहिए, उसके लिए टेंशन चाहिए। कितना टेंशन चाहिए? तो उसके लिए हमको 24 टेंशन चाहिए, 24 वोल्ट का टेंशन चाहिए। जब चार्ज आकर 24 वोल्ट के बराबर उसको पुश करेंगे तब वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए अगर हमारी कार या मोटरसाइकिल 12 वोल्ट की है तो 6 वोल्ट की बैटरी लगाने से सेल्फ नहीं चलता, क्योंकि
उसके एक एक कूलम चार्ज में सिर्फ 6 एनर्जी होती है और हमको कितनी चाहिए 12। इतना ज्यादा हमको एनर्जी चाहिए कि वो इतना ज्यादा टेंशन हो, इतना ज्यादा फोर्स लगाए कि सेल्फ घूम जाए। वो नहीं होता, तो हमें तो 12 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर है तो कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे, वोल्टेज बढ़ गया, राइट। तो इस तरह से हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, टेंशन इंक्रीज करेंगे। और जब हमें ज्यादा चार्ज चाहिए, पैरेलल, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट एनर्जी विल बी सेम। तो हम ज्यादा वोल्ट पे एनर्जी लेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगी, ऑफ कोर्स। ओके, so this is energy in the combination.